what his journey being as a MBA plus ACCA, a good position and a good job in one of the leading accounting firms. तो अब आप गूगल पे ACCA लिखोगे, जयपुर अपने आप वो सर्च कर लेता है तो परेश सर का फोटो आता ही आता है। MBA के साथ ACCA करने के क्या एडवांटेज होते हैं? पहला एडवांटेज तो नो एग्जाम्शन, एंड सेकंड एडवांटेज इज मैम एज बी आई टोल्ड यू आई वाज डूइंग CA, तो कॉस्ट एडवांटेज। एंड ये एग्जाम्पशंस जो हैं, सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज मिथ ऑन ये सेल्फ क्रिएटेड मिथ है, बट नो वन जज यू ऑन द बेसिस वंस यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, एवरीवन जस्ट प्रेजेस व्हाट यू हैव। जस्ट वन डे बिफोर द पेपर आई हैड अ कॉल विद पूजा मैम रात के 12 बजे। शी वाज एक्सप्लेनिंग कि कैसे ये पेपर लिखना है। रात को 12 बजे भी मेंटर्स आर देयर ऑन द टोस टू हेल्प यू आउट। Hello everyone and welcome back to another podcast session with us. So today we have an MBA student. Today we will be seeing that what his journey being as a MBA plus ACCA journey being, and what all the challenges he faced and how he achieved a good position and a good job in one of the leading accounting firms. So welcome Tushar. Tushar, welcome to the podcast and thank you for taking out the time today for this podcast. Thank you so much ma'am for calling me here. It's my pleasure. Yes. Okay Tushar, so पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि what aimed you to choose MBA plus ACCA? मतलब ये कॉम्बिनेशन मिलना भी ना बहुत मुश्किल है. So what aimed you कि मैं MBA कर लूँ? जनरली स्टूडेंट जाता है सिर्फ MBA के लिए, yes, या फिर ACCA के लिए. So what aimed you to go with this particular program? So मैम बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आई टेल यू व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर दिस कोर्स. सो I was doing BCom and I along with I was pursuing my CA. So CA. Yes, chartered accountancy. So I have cleared foundation and then I just appeared for intermediate and I wasn't able to clear intermediate. So my target was कि जब मेरा BCom पूरा हो जाएगा, if I doesn't clear the CA intermediate, मैं छोड़ दूंगा and I'll find something else. So because once you go for a CA tuition, everyone is like CA background. तो मेरी एक दोस्त ने वो उसका फाउंडेशन भी नहीं हुआ था, she called me और वो अपना बैकअप प्लान बता रही थी कि मैं ऐसे MBA plus ACCA भर दूंगी from this college GCC. उस टाइम तक I wasn't aware about कि ACCA भी क्या होता है, to be very honest. तो जब उसने मुझे बताया, मैं भी इंटर में नहीं कर पा रहा था, तो आई वाज जस्ट स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट व्हाट इज ACCA. तो अब आप गूगल पे ACCA लिखोगे, जयपुर अपने आप वो सर्च कर लेता है तो परेश सर का फोटो आता ही आता है. तो GCC मिला, फिर ढूंढा, फिर वेट किया कब BCom होगी, एडमिशन लूंगा. देन आई जस्ट वेंट मोर ओवर टू द कोर्स कि क्या कोर्स है, कैसे होता है, MBA के साथ ACCA करने के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या नहीं होते. फिर फी स्ट्रक्चर देखा एंड एवरीथिंग. देन आई रियलाइज्ड कि मुझे CA से शिफ्ट होके कुछ एक प्रोफेशनल डिग्री तो करनी है ना, अकाउंटेंसी. तो ACCA वाज अ गुड ऑप्शन. ऑल्सो दिस स्ट्रक्चर MBA plus ACCA helped me to take a step forward. And also take a risk कि if ACCA नहीं होता है, I have MBA as my degree with me, and any day I have to do post graduation, and it's not charging me any time more to do MBA plus ACCA together. It's the same fees. So that's why I decided to do this MBA plus ACCA. Okay, now right now you said that the advantages which you saw, right, when you were searching for MBA plus ACCA, what two advantages you felt and that ignite you कि नहीं ये ही है and यही करना है? मैम पहला एडवांटेज तो नो एग्जाम्शन वाली चीज़ थी, बिकॉज once I have done my BCom, I have 4 exemptions with me. But when I just searched about this course, I saw that I will get additional 5 exemptions. And even if I give that 5 papers, it will take me 1.5 years आराम से to clear that paper. So मुझे यही था 2 साल में अगर MBA आ जाता है प्लस वो 4 पेपर निकल जाएंगे तो दिस इज अ गुड एडवांटेज. 1.5 साल बच रहा है एंड 9 एग्जाम्शन आ रही है, कल को फेल हो गया उन 5 पेपर में तो उससे तो बेटर ही है दैट यू गेट द एग्जाम्शन फॉर दैट 5 पेपर. एंड सेकंड एडवांटेज इज मैम एज बी आई टोल्ड यू आई वाज डूइंग CA, तो कॉस्ट एडवांटेज, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट 9 exemptions in total if we calculate. Otherwise you have to pay 1 lakh rupees approximately to get that exemption. तो वही था कि उस टाइम पे फीस था कुछ 2.5 के अराउंड प्लस ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, ACCA का अलग. तो यही था कि अगर पूरे कोर्स को कहीं ना कहीं मिला दो तो मुझे
कॉस्ट बेनिफिट पड़ रहा था ये, तो लाइक दीज So टू you बेनिफिट. actually did the cost benefit analysis. Yes, ma'am. And that is the best एवरी प्रो एंड कॉन मैम की ACCA नहीं हुआ तो MBA हो जाएगा, MBA पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही है, राइट और हो और गया तो CA ठीक का है, जो बोल रहे हैं हम कि CA नहीं हो रहा था तो वो ACCA जो हो गया. एक्चुअली हमारा आफ्टर 12th फर्स्ट एम था कि वी नीड वन प्रोफेशनल प्रोफेशनल डिग्री, डिग्री. यस मैम. वो आज हमारे पास है. Yes, ma'am. राइट एंड ये एग्जाम्पशंस जो हैं, सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज मिथ आल्सो कि अगर आप एग्जाम्पशंस है तो आपके मार्केट में वैल्यू नहीं है या ऐसा नहीं है. इज इट, आई मीन ये है एक्चुअली या नहीं है? मैम मुझे ऐसा लगता है ये सेल्फ क्रिएटेड मिथ है, ठीक है, क्योंकि लाइक कोई पूछता नहीं आपसे दैट यू आर थ्रू एग्जाम्पशन और यू आर नॉट. इवन इफ इन CA also no one asks you how many attempts it took you to True. clear the CA. हाँ. So it's like it's a myth I guess कि no one will be asking you at any time that how many papers you have cleared until unless you're gonna tell them. And no one like gonna judge you. Obviously people will be like कि तुमने 4 ही पेपर दिए, but even if you clear that 4 papers as well, it's a big thing. तो like हमसे पूछा है लोगों ने कि अच्छा. तुमने क्या, लाइक एवरीवन नोज कि एग्जाम्पशंस भी मिलती है इस कोर्स में एंड एवरीथिंग, बट नो वन जज यू ऑन द बेसिस वंस यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री. एवरीवन जस्ट प्रेजेस व्हाट यू हैव. नो वन आस्क यू दैट हाउ यू गॉट इट. एंड आई थिंक नॉलेज एक ऐसी चीज है जो टेस्ट करी जाती है rather than on the attempt basis. Exactly. Right? So when now you're working in Capsitec, right, as Yes, ma'am. one of the renowned accounting firms in Jodhpur. So when you went for this placement, तो क्या feeling थी, क्या मतलब you were giving, I think you were appearing for the first time, क्योंकि अगर आप BCom के साथ CA कर रहे थे तो कहीं placement, हाँ, या first time you are sitting appearing for the, so what was your feeling and what was the procedure for it? So मैम बेसिकली लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कैप्सिटेक इंटरव्यू पे बैठने ही नहीं वाला था. अच्छा. बिकॉज ऑफ 2-3 मेन रीजन. जोधपुर है, ठीक है, पहली चीज जोधपुर में है. दूसरा जो रोल वो ऑफर कर रहे थे वो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मोर ओवर मार्केटिंग है, ठीक है, एंड एवरीथिंग. बट लाइक आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम पूजा मैम. पूजा मैम ने बोला कि तुषार ऐसे ऐसे कंपनी आ रही है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ये वो. पूजा मैम कन्विंस्ड मी टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. पूजा मैम ने मुझे 2-3 जनों के नंबर दिए हु हैव लाइक वर्कड इन कैप्सिटेक. तो लाइक उनसे बात की, उनसे समझा, एंड इंटरव्यू के लिए भी लाइक शी प्रिपेयर्ड अस कि ये पढ़ना, और बाकी उन्होंने जो नंबर्स दिए थे उनसे बात करके जो भी हेल्प मिली, वी प्रिपेयर्ड, वी गॉट सिलेक्टेड. वहाँ पे जाके भी यही था मैम, क्योंकि बेसिकली यूके बेस्ड कंपनी है, तो आपकी डिग्री जस्टिफाई हो रही है एट एनी डे, तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होगा. सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आज पूजा मैम नहीं बोलते तो शायद मैं कैप्सिटेक में नहीं होता अभी, मैं दूसरी कोई फॉर्म ढूंढ रहा होता. और एक ना बेस मिल गया है. आई थिंक नाउ यू विल हैव समथिंग इन योर एक्सपीरियंस आल्सो टू शो, राइट? बिल्कुल. एक अपना करियर स्टार्ट हो चुका है, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग कि कैप्सिटेक का ना यूके अकाउंटिंग प्रोफाइल है. सो एज व्हाट यू राइटली सेड दैट आपका डिग्री जस्टिफाइबल हो रहा है, राइट? एंड एक और चीज मैं आपसे पूछूंगी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो GCSE का मेन पार्ट होता है, राइट? सो यू डिड समवेयर इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग योर MBA. यस मैम. कहाँ मतलब इंटर्नशिप कैसे मैनेज करिए? बिकॉज आई नो दिस थिंग कि हम MBA के साथ जब ACCA की बात करते हैं, सो कंपेयर्ड टू अगर हम BCom की बात करें आपको एक साल कम मिलता है. सो इट इज वेरी टैक्सिंग. सो हाउ नाउ आई विल आस्क यू 2 क्वेश्चंस. पहला कि इतना टैक्सिंग था, ठीक है, एंड दूसरा कैसे मैनेज करा प्रैक्टिकल स्टडीज में एंड योर प्रैक्टिकल एंड योर स्टडीज. तो मैम मैं ये कहूँगा, फर्स्टली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का सीन ये था दैट आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इधर से पहले. तो मैंने थोड़े टाइम तो उधर ही काम किया. देन लाइक द प्लेसमेंट सेल, रुचिता मैम एंड सौरभ सर, लाइक दे हेल्प मी टू गेट इनटू माइंड स्पेस, राजाबाग में है. दैट इज एन अकाउंटिंग कंपनी. अर्लियर आई वाज वर्किंग फॉर एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी. तो लाइक ऐसा था कि लाइक यहाँ से 9 से 12 क्लासेस होती थी, उसके बाद 1-1.5 घंटे का ट्रैवल बैक टू द ऑफिस, फिर वहाँ पे 7-8 बजे तक आप रहते थे. तो पहले 6 महीने तो कोई पेपर्स दिए नहीं हमने, तो 6 महीने तो कॉलेज, बेसिक कॉलेज था. हाँ, तो वो वाले टाइम पे तो इतना कुछ वो हेक्टिक लगा नहीं. बट आफ्टर दैट फर्स्ट पेपर मैंने जून 23 में दिया था. तो वो एक टाइम था जब लगता था यार कुछ पढ़ना भी है, तो हम थोड़ा सा ऑफिस आवर्स कम किए, बट थोड़ा प्रेशर हाँ, तो फिर वही था कि दोनों चीजें मैनेज करनी है. फर्स्ट पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज था क्योंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हो, तो वो वाली चीज थी. देन लाइक लेटली लाइक ऑफिस से 1 मंथ का गैप लिया, जब पेपर से 1 महीने पहले. आई रिक्वेस्टेड देम that I'll work बाद में ज़्यादा and give me some time, and then I just studied more, practice more and more questions, and then doing a bit work from home, like just asking not to travel, so it will save my time.
So I guess that would have been manageable for me. And like rest, as you asked, like how I manage my studies, so I guess I practice more questions, gave more papers, like everything is available in CBE platform. And like college was there, college taught me, like Paresh sir taught us AFM. Paresh sir like took us like several practice paper, mock papers, and checked them. So I guess practice more helped me, and the strategies which they told me, like I remember for my SBR paper as well, we had a like just one day before the paper I had a call with Pooja ma'am रात के 12 बजे. She was explaining कि कैसे ये पेपर लिखना है, बिकॉज हमने उस पेपर में इतनी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, तो हमें पता ही नहीं था पेपर. तो उन्होंने बताया, फिर हमने रात में एक पेपर किया, नेक्स्ट डे पेपर दे दिया. तो लाइक इट वाज So मैनेजेबल. I think you mentioned कि रात को 12 बजे भी mentors are there on the toes to help you out. Yes, ma'am. So how does this I mean, I just want to ask and have an understanding कि क्या यही help हर जगह पे मिलती है, या this is what we at a GCEC in the mentors, which mentor actually guided you, and who is your ideal, if I say as a mentor, that this mentor through which I have got this career path, and today I am here because because of this thing, that particular mentor showed me the correct path and all. Parents, like my father has like a background of business, and my mother is like into this educational background. Both of my mamas are CA. So like from the starting only, that was the culture that you need to have a CA degree with you. So like to do a professional degree, that motivated me. And when CA was not happening, so I have to like take a pivot from CA to choose something else. So I chose ACC at that time. When it comes to motivation, I still remember that when I gave AFM as my first paper, before result I came to college that I need to work. मुझे नहीं लगता कि clear होगा सब कुछ, ठीक है, और मुझे काम करना है. पूजा मैम थे, रुचिता मैम थे, and they told me कि अभी एक ही तो पेपर दिया है, इतना टाइम वेट किया, ऐसी कोई एज हुई भी नहीं है कि काम करना है, and everything they explained me. They told me कि क्या मतलब रुको तो सही, रिजल्ट तो आना, क्योंकि एक हफ्ते में रिजल्ट आने वाला था. बट मेरे को ऐसा था दैट इफ आई लाइक डिडंट क्लियर, मैं फेलियर्स को देख चुका था, तो मुझे अब फेलियर्स एक्सेप्ट करने से प्रॉब्लम नहीं थी. तो मुझे एब्सोल्युटली एग्री. वो जब आप बार-बार फेल होते रहते हो, यू हैव अ हिच कि पता नहीं होगा या नहीं होगा. एग्जैक्टली. एंड फिर वो इरिटेट नहीं करते आपको, फिर यू एक्सेप्ट देम दैट इफ इवन इफ दिस हैपेंस ना, सो देख लेंगे. वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट रादर जस्ट क्राइंग फॉर व्हाट हैपेंड. सो लाइक वही था कि इफ AFM नहीं होता आई वर्क. सो आई फाउंड अ फर्म इन जयपुर कि यहाँ काम कर लेंगे, कॉलेज के बाद इतने बजे चले जाएंगे. एंड उस टाइम कॉलेज भी उनसे टच में था कि हमारे बच्चों को प्लेसमेंट के लिए एंड एवरीथिंग. बट पूजा मैम टोल्ड मी 1 साल रुक जाओ, 1 साल में डिग्री हो जाएगी, फिर ले लेना. एंड दैट मोटिवेशन टू कंटिन्यू ACC है. फिर AFM में पास हुआ, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, तो वो चलता ही रहा. वो चलता है. एंड आई थिंक एक बार हम पास होते रहते, कॉन्फिडेंस आता है, and then we keep on just keep on going, clearing the papers and all. एक बार आई थिंक हमें वो पास होने का या एक मोटिवेशन मिलने की जरूरत होती है. एंड देन आई थिंक एग्जैक्टली वो अगर एक स्टॉप लग जाता है तो शायद उस कोर्स को सेम पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा रिग्रेट भी हमें भी लगता है कि व्हाई टू गिव इनटू इट. एंड आई थिंक ACC का एक एडवांटेज जो मुझे लगता है, आई थिंक यू कैन एलैबोरेट इट फर्दर, कि आपको अटेम्प्ट्स बहुत मिलते हैं, राइट? आपको आई थिंक 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, एंड आप एक एक पेपर करके भी अगर दे रहे हो तो आप आराम से रिलैक्स माइंड से दे सकते हो. हाँ, मैं मतलब CA में भी अब 3 हो गए हैं. बट आई गेस विद ACCA देयर इज वन बेनिफिट व्हिच यू सेड कि आप एक एक पेपर करके भी देख सकते हो, बिकॉज वंस यू कॉन्सेंट्रेट इन वन पेपर ना, यू गिव योर 100%. इन CA इट्स लाइक you have to give either group 1, group 2 or both the groups together. And every group has 3 papers now. 3 or 4 papers now. So you have to divert your attention to every paper, and it's like one day after one day you have to give a paper. And also the passing pattern is like you have to score per paper 40 and aggregately 200 वाला जो उनका सिनेरियो है. तो वो वाली चीज ना पासिंग को बहुत डिफिकल्ट बना देती है. और once you get like any paper you get fail, तो द मोटिवेशन गोज डाउन एंड यू फील लाइक वापस सेम कोर्स पढ़ा ही नहीं होगा. एंड यहाँ पे ये बेस्ट पार्ट है कि आप एक पेपर पे कंसंट्रेट करके, आपको पता है सिर्फ ये एक पेपर देना है, एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर पेपर. और क्लियर हो जाता है तो वो हमें देख रहे हैं कि 4 में से 3 पेपर्स ही बचे हैं, अब 2 पेपर्स बचे हैं, अब तो एक ही बचा है, एंड देन you're done with it. Exactly. Why another in CA also, if you have given intermediate you have to work for 3 years, then you have to give final. And
once a person, like I still remember, like my bhaiya, he has done very hard, like for clearing the paper, completed internship, like attempted final, and he just left with one paper and Right. he left CA because क्लियर ही नहीं हो रहा था. हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है दैट उनकी लाइफ के 7-8 ईयर्स सिर्फ इसलिए वेस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने सर्टेनिटी दी ही नहीं, क्योंकि वो चलता ही चलता है. मुझे लगता है ACCA में इट्स लाइक आप पेपर देते देते काम कर लो. यू डोंट हैव टू Right. वेट फॉर डूइंग इंटर्नशिप्स फर्स्ट एंड देन गिव पेपर्स. यू कैन वर्क आफ्टरवर्ड्स एज वेल. सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस एंड पॉइंट. प्लस पॉइंट इज दिस कि जो हम स्टार्टिंग में बात कर ही रहे थे कि नहीं भी होता तो एक PG डिग्री हमारी साथ साथ में आ रही है, जिस प्रोग्राम का मेन Exactly. एम है कि जो डुअल डिग्री है कि Exactly. MBA प्लस एक आपको इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच यू आर गेटिंग इट, राइट? नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग इज that you were doing practical training, right? How much it helped you now, since you're already working in a corporate, so how much it helped you? And when now your juniors are coming, they have this doubt that how much time you should dedicate into internship, या manage नहीं होता है, या how relevant it is, हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले पेपर क्लियर कर लेते हैं. So I want you to make this clear कि बाद में करना ज्यादा सही रहता है, साथ साथ करें, manageable कैसे होता है, how you managed it, कि आपका क्या डे वाइज शेड्यूल रहता था, क्योंकि यहाँ पे आप 3 घंटे पढ़ के जा रहे हो. Yes. अब उसके बाद क्या शेड्यूल था? आई वांट यू टू हेल्प दी स्टूडेंट्स विद दैट. सो मैम बेसिकली सीन ये रहता है दैट फर्स्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि इंटर्नशिप पहले करें या बाद में करें, तो इसका सिंपल सा आंसर है दैट व्हाट मैटर्स टू यू. ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंटर्नशिप करी तो फेल ही हो जाएंगे, अगर ये माइंडसेट के साथ हो तो आप कुछ भी कर लो, दैट यू विल नेवर बी एबल टू गेट वेयर यू वांट टू बी. तो बेटर यही रहता है दैट फर्स्ट यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि हम ये मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, और सेकेंडली ऑप्शन मत दो, ट्राई करो मैनेज करने का, बिकॉज एनी डे ऑब्वियसली इंटर्नशिप साथ में करना बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वो 2 साल आपके काउंट हो जाएंगे. अदरवाइज वो 2 साल आपने सिर्फ पढ़ाई करी, फिर आपको नेक्स्ट 3 इयर्स अब काम करना है टू गेट द मेंबरशिप डिग्री, अभी अफिलिएशन आएगा. तो आई थिंक दैट एनी डे इट इज बेटर टू वर्क अलॉन्ग विद द स्टडीज, बट येस ऑब्वियसली इट विल बी हेक्टिक मैम, क्योंकि नहीं मैनेज हो पाता. तो मेरा रूटीन यही था दैट बिफोर पेपर आई जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 15 days, 20 days, and उस time पे I study. I solve more and more questions over CB platform papers, and also I think plus point with me was that 2 of my other friends also joined the course with me. So we 3 study together. Every time for every paper we 3 study together. I saw you in the campus. Yes. तुम लोग हमेशा बैठ के पढ़ाई करी है. हाँ, so what helped us ना, तो motivation भी था, internal competition भी था, also paper checking में होता था that we all 3 attempt the paper together and we just shift पेपर्स. तो मैं किसी एक का चेक कर रहा हूँ, वो किसी एक का चेक कर रहा है. सो एवरी टाइम वी गेट द रिजल्ट इवैल्यूएशन ऑफ आवर पेपर, बिकॉज वंस यू चेक योर ओन पेपर ना, आप वो करेक्टली मार्क नहीं कर पाते खुद को, बट इफ अदर पर्सन इज चेकिंग तो वो गलतियां निकालेगा. And you only have to. Nice strategy, I would say this. I think group study helped you a lot in this. Group study helped us a lot, and it's a professional paper, तो आप टाइम पास नहीं करते. You try to get more and more productivity. Obviously आपके पास टाइम भी कम है, उस चीज को ध्यान रखते हुए. तो I guess ये वाली चीज थी. तो हम लोग यही करते थे. अब जब हम घर पे होते थे, we come over a video call, Google Meet. हम बैठ जाते थे, हमारे ऑडियोज बंद कर करके, even if we are solving a question, हमें वीडियो देखना है, लेक्चर देखना है, हमें कुछ, तो we try to be like create a classroom vibe so that कोई distract ना हो. अदरवाइज खुद अकेले पढ़ते हैं तो हमेशा ये चीज रहती है दैट चल ये कर लेते हैं 5 मिनट, फिर ये कर लेंगे. सो कहीं ना कहीं वो वाइब, क्योंकि कॉलेज में तो टीचर्स हैं वो बना दे, कॉलेज के बाद क्या. एंड ऑल्सो वी लाइक वी वर स्टेइंग बैक टू द कॉलेज ओनली व्हेन वी डोंट हैव एन इंटर्नशिप या लेट जाना होता था, तो हम कॉलेज ही रहते थे. हम कॉलेज में बैठ के हम पढ़ लेते थे साथ. तो लाइक फिजिकल स्टडीज का तो लाइक वो चीज रहता है. Physical studies, group studies, and fetching out the time from your schedule is most important. And really, I always appreciate this of specifically for your batch. And I've always seen you people, na ma'am yahan pe baith ke padh le, ma'am campus mein baith ke padh le, ma'am canteen mein baith ke padh le. This has been your batch every time, and really appreciate. And tum jab
जा रहे हो अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, तब कैसे मैनेज करते थे कि भाई घर जाके फिर कितनी पढ़ाई करते थे? हाउ इन जनरल आई जस्ट वांट टू यू टू गिव मी एन आंसर कि डेली का कितना स्टडी आवर्स होना तो चाहिए? मैम जैसे जब कोर्स चल रहा है लाइक टेक अ टाइमलाइन ऑफ 3 months, तो आपने लाइक पहले के 2 महीने तो आप 5-6 घंटे, मतलब मैंने 5-6 घंटे ही पढ़ाई करी होगी। उसमें बेसिकली यू टेक अ कोर्स इवैल्यूएशन दैट व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड लाइक कैसे मैनेज करें, बिकॉज कॉलेज की क्लासेस भी होती थी। तो 9 to 12 अगर कॉलेज की क्लास है तो 3 घंटे वहाँ आ गए और 3 घंटे अलग से, तो 5-6 घंटे ही होता था। बट लास्ट का 1 महीना यू हैव टू गिव योर 100%, तो मैंने 10-12 घंटे भी दिए। सो इट लाइक अगर इंटर्नशिप में भी जा रहे हो तो 6 घंटे वो हट गए तो रात में पढ़ो, सुबह जल्दी उठ जाओ। तो मतलब ये रहता था सुबह 5-6 बजे उठ जाओ, सुबह 9-10 बजे तक पढ़ लो एंड उसके बाद अपने काम करके दिन में बैठ जाओ या शाम में बैठ जाओ, वट एवर टाइम फीजिबल टू यू। बट हम लाइक ट्राई टू मैनेज, हमने थोड़ा ग्रुप अकॉर्डिंग मैनेज किया था ताकि साथ में निकल जाए, बट इंडिविजुअली भी पढ़ते थे। मतलब अगर इंडिविजुअली आप 3 घंटे पढ़ रहे हो कॉलेज में तो मिनिमम 3 to 5 आवर्स आपको घर पे जाके Exactly. पढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तो आपके कंसेप्ट, जैसे परेश सर एक चीज कहते थे कि मैंने जो पढ़ाया अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो अगले दिन की क्लास समझ नहीं आएगी, और अगर एक दिन की भी क्लास मिस कर दी तो अगले दिन का भी समझ तो रेगुलरिटी, मतलब मुझे याद है मैं परेश सर के बैच में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जस्ट बिकॉज ही सेड दिस कि छुट्टी ली समझ नहीं आएगा। एंड रेगुलरिटी, प्रैक्टिस समझ नहीं आया था एज ही सेड, तो परेश सर से डाउट्स पूछे। लास्ट के जब 15 दिन प्रैक्टिस के लिए वो होते थे तो परेश सर को कॉल किया, एक डाउट सेशन चाहिए, कॉलेज आए, डाउट्स क्लियर करें। सो वही चीज़ थी दैट यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द मेंटर्स एंड देन दे विल हेल्प यू। दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम टू हेल्प यू, बट यू हैव टू आस्क You फॉर have to हेल्प। ask it. Definitely. Doubts आपके हैं, so you will have to ask it. Exactly. पूछना बहुत जरूरी है। मैंने अपने एक पहले पॉडकास्ट में भी बोला था, मेहनत, प्रैक्टिस एंड डाउट्स, अगर पूछोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा डाउट्स कितने हैं। एंड आई थिंक हर स्टूडेंट का शेड्यूल अलग होता है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, बट सिंस इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, सो हमें वी हैव टू गिव अप दी स्लीप, वी हैव टू गिव अप आवर एंटरटेनमेंट। उस थोड़ा टाइम निकाल लो, बाकी आपको मैनेज तो करना ही पड़ता है। पॉइंट वही है मैम, दैट एज आई टोल्ड यू, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने सीरियस हो। एनी डे इवन इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज बट तुम्हारा मन नहीं है वो चीज करने का, तो मतलब आई बिलीव इन नॉट टू गिव मोर टाइम, बट जब पढ़ो, जब पढ़ने के हिसाब से पढ़ो तो यू विल गेट इनटू दिस। सो या। And which all study material you referred for ACCA? Like one which college provided, second is ACCA has the whole study material with them. Like ACCA Study Hub, Yes. and I think Kaplan. Yes. Okay, so you went through the questions, like जब अपन मतलब पढ़ाई कैसे करी, if I ask you कि कैसे questions practice करे, कोई और भी study material लिया या उन्हीं पे rely करा whenever you preparing for your P-level papers? मैम स्टडी मटेरियल पे इतना ध्यान नहीं दिया टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज लाइक एट एंड क्लास चल रही है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ACCA स्टडी हब, तो वो पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको पता है इफ योर टीचर्स इज रेफरिंग ACCA स्टडी हब तो मतलब रेलेवेंस तो है। तो उसी को रीड किया, खुद के सेल्फ नोट्स क्रिएट करे, एट लास्ट उन्हें रेफर किया। और प्रैक्टिस के लिए दे गिव यू अ फॉर्मेट कि करना कैसे है। ऑब्वियसली जब पहला पेपर अटेम्प्ट करते थे तो ACCA स्टडी हब CBE प्लेटफॉर्म में बहुत सारे पेपर्स है, 15-20। पहला पेपर अटेम्प्ट करते थे वो 6 घंटे में होता था, क्योंकि पता ही नहीं है करना कैसे है। फिर आंसर पढ़ते थे, फिर समझ आता था अच्छा ये भी लिख सकते हैं, अरे इसको ऐसे करना है। धीरे 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 ये समझ आया कि पेपर करना कैसे है। एंड वंस यू रीच टू दैट, जो रेलेवेंट मॉक्स होते हैं आपके, जो 1-2 ही अपलोड होते हैं, वो पेपर्स तक आते थे जब तक आपको पता होता था पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो आपकी स्पीड भी आ जाती थी, आपको पता भी होता था पेपर कैसे सॉल्व करना है, और फिर टारगेट यही रहता था कि इन पेपर्स में पास होना है। यहाँ हो गए तो वहाँ हो जाएंगे। एंड आई थिंक एक हायर परसेंटेज ही रखते हैं कि यहाँ पे अगर इतना परसेंट, हाँ मतलब आप चेकिंग करो वैसी कि जहाँ एक भी बनता है वहाँ आधा दे दो, तो आप वहाँ पे 50% ला पाओगे। ओके, सो तुषार, नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, दैट यू सेड कि आप CA कर रहे थे and you want to do something aligned with CA, तो ACCA के साथ फिर MBA करा। I just want to know that there are a lot of students जिनको नहीं करना होता CA, right? But they want to pursue PG degree, like a post graduation degree, और MBA करना चाहते हैं। बहुत से students होते हैं, मैम CLAT देंगे या मैम CAT देंगे या अपने GMAT देंगे। So what is your suggestion to those students कि अगर MBA करना है तो किस में करो आज की डेट में relevance, and if MBA plus CA ACCA, then why MBA plus ACCA?
मैम मैं यही कहूँगा दैट लाइक द पीपल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. फर्स्ट जो कैट देना चाहते हैं हाँ और कैट निकाल लेते हैं. हाँ तो अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है. तो क्योंकि दैट विल एड वैल्यू टू योर डिग्री. बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ कॉलेज, ठीक है, एंड आपको सिर्फ एमबीए करनी है, आपने कैट भी अच्छे से नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगता है डूइंग इट विद द प्रोफेशनल डिग्री विल इनहांस, बिकॉज वंस यू गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू, विल सी टू दैट पर्सपेक्टिव. तो what a employer will have a 2 MBA candidates, so उसके पास हमेशा option होगा to choose the one who have more skills. But if you do an integrated course like I did with ACCA, तो वो benefit ये होगा that you will be always upper than that normal MBA person. तो मुझे ऐसा लगता है that if anyone wants to do MBA, either he is doing with a very good college, IIM or someone, or otherwise obviously it is very beneficial to do it with a professional degree because it will enhance your portfolio at last. And like MBA plus ACCA, you get this degree is valid 139 countries. I don't remember the exact number. And फिर आपको थोड़ा बहुत एक प्लस पॉइंट, एक सरपास मिलता है टू लाइक गो फॉर इंटरव्यूज एंड टेल दैट यू आर इन ACCA. Even if you have 9 exemption, supposing you didn't clear anything, still you'll always have an edge that you have been, you have like cleared or exempted with 9 papers. And anytime in future you have an option to give the 4. जब मन हो दे दो. एग्जैक्टली, जब मन है, जब टाइम मिले आप दे सकते हो. Yes. एंड आई थिंक अगर आपका एक आध पेपर नहीं भी क्लियर होता है, इफ यू गो फॉर द जॉब, आप जॉब के साथ भी कर सकते हो एक पेपर. तो हाँ मैम, 3 महीने की जगह 6 महीने में दे दो. हाँ. आपके ऊपर है, आपके पास टाइम कितना है. यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स एंड एट लास्ट व्हाट इज दैट एज इज आपका पेपर कॉस्ट. एग्जैक्टली. और कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है दैट ऑल योर प्रीवियस पेपर विल गेट कैंसल्ड इफ यू गॉट फेल्ड. तो लाइक सीए में ऐसा होता है, आपने एक भी फेल किया आप सारे में फेल हो जाओगे, आपको सारे वापस. इसमें ऐसा नहीं है. तो एक ही पेपर है, तो अगर आप 3-3 महीने में 2 अटेम्प्ट भी दे दोगे, दे लो. Until unless you are getting demotivated, करते रहो. If you're motivated तो आप आराम से 1 साल में निकाल सकते हो. Yes. And I think आज के टाइम पे प्रोफेशनल डिग्री होना is really very important. And I think that is why MBA plus ACCA, if I summarize your Yes, thing, ma'am. is आपको MBA डिग्री तो मिल ही रही है और आपको एक प्रोफेशनल डिग्री भी. Also मैम पेपर्स भी सेम ही है. जैसे मेरे को यही था, तो मतलब मैंने जो पेपर्स ACCA में दिए वो मैंने यहाँ भी दिए, और जो 9 एग्जाम्शंस मिली उनके पेपर्स भी मैंने दिए ही हैं. तो एनी डे इफ समवन आस्क मी कि 9 पेपर तो एवे ही हो गए, तो मैंने कॉलेज में पेपर दिए हैं. सो आई नो अ क्रक्स अबाउट व्हाट द पेपर कंसिस्ट. सेम पैटर्न, सेम थिंग. सो आई गेस it's a win-win situation for everyone. Exactly. And I remember the first day you came for the admission. I remember you all came with your friends and, we explained you the entire curriculum. Exactly. And that was your exact question, which you are now saying it. Ma'am, paper same है या नहीं है? And that is what, we also explained it to you, that because it is exactly. उस टाइम पे क्वेश्चन यही था that will it be justified if we go for a 9 exemption route? क्योंकि like लोग ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हारी तो वैल्यू ही नहीं है, तुम तो. But now I realize that it doesn't matter. Because it's same like CA. No one cares about how many attempts you took to become a CA. Once you're a CA, you have authority. You do whatever you want to. Exactly. You have that degree, and that is what in the end matters. And Yes, it is all about the degree. Okay, Tushar, now the last question from you is that, you have done amazingly in the MBA and ACC, and you're doing the job as well. What, study tips you would like to give to the upcoming juniors of yours and to the audience, that how to study and well prepped ACCA, how can you be? So I don't think so I'm capable enough to answer this. No, you are now. You have already, cleared all the papers, so definitely you can. So basically, ma'am, the only thing I'll say is that first, like ये हमेशा से मेरी philosophy रही है to be in touch with everyone, be it your mentors, be it your friends, because more connected you are, more aware you are about things, and you can ask for help, because asking for help is never a challenge. Exactly. So I'll just tell everyone to just ask for helps, even if your friends, juniors, anyone. Never feel like कि जैसे हम MBA कर रहे थे तो juniors थे जिनसे हमने help लिया. Never feel like कि यार ये junior है इससे क्यों help मांगे, because at last he is also pursuing the same course with ACCA. I am also pursuing the same course with ACCA. So there is nothing. So never just keep that proud in you that मैं बड़ा हूँ, I won't be asking for help, या teachers को तंग नहीं करना, just ask for request politely, teachers help कर देंगे. Absolutely. Secondly, I'll feel like कि practice more and more questions. तो like मेरा ये philosophy रहा है, मेरे लिए ये एक success रहा है कि मैंने papers बहुत सारे करे, मैंने questions बहुत सारे करे. कितने papers? मैंने पूरा CBE solve किया है.
सीबीए में Okay. जितने पेपर्स हैं मैंने सारे सॉल्व सारे करे, past year उन्हें papers चेक सारे। एग्जैक्टली उन्हें हम्म। चेक भी वैसे ही किया कौन है। से मतलब अटेम्प्ट्स अगर मैं पूछूं, जैसे अभी हम 2024 में हैं तो शायद 2017 तक के पेपर है ACCA तभी, मतलब पास 13 14 पेपर्स हैं हर पेपर के। तो 14 पेपर्स में मोस्टली आपका ACCA स्टडी आपके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर हो Right. जाते हैं। ऑल्सो स्पीड बन जाती है। स्पीड बन जाती है, यू लाइक अडेप्ट दैट पेपर टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने रिमोट पेपर्स ही दिए थे तो मेरे लिए तो घर पे पेपर देने थे, तो सेम माहौल में सेम तरीके से मैंने वो पेपर्स दिए, फिर वो चेक भी किसी थर्ड पार्टी नहीं करे। सो आई गेट द इवैल्यूएशन, पहले 10 पेपर में फेल, फिर 48, फिर 49, फिर धीरे धीरे 50 आते थे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ट होता है मैम। तो लाइक प्रैक्टिस मोर, ठीक है, लाइक आस्किंग फॉर हेल्प, एंड लास्टली आई गेस कि लाइक मतलब बिलीव करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नो वन विल बी बिलीविंग यू, ठीक है। फेल हो गए तो बिल्कुल ही नहीं, बट पास भी हो गए तो भी नहीं करेंगे। एवरीवन विल बी लाइक पढ़ ले, तूने नहीं पढ़ाई करी, तूने ये कर लिया, एंड यू मस्ट बी लाइक कि यार इससे भी मिल रहे, इससे भी मिल रहे। तो यही है कि अगर मिल रहे हो, खुद को मिलना है, तो या तो दूसरों को सुनो मत, बट रिजल्ट्स दे देना, और अगर सुन रहे हो तो डिप्रेस मत होना। Absolutely. नहीं, this is really nice which you said कि या तो सुनो मत, और अगर सुन रहे हो तो डिप्रेस मत हो, don't take it to your heart मतलब and उनको mind. कभी ब्लेम मत करो दैट बिकॉज ऑफ यू ना मैं सीए कर मतलब ACCA कर पाया, ना मैं दोस्तों से मिल पाया, लाइक आई सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली एवरीवन विल हैव अ होप कि तुम्हें ये करना है, बट अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी गलती है, बट या तो तुम उसे गलती मानो मत, कर लो, नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनको सुन लो, बिकॉज and I think everything requires sacrifice. yes ma'am, without sacrifice तो क्या करो, मतलब you cannot achieve things ना। Exactly. अगर तुमको पढ़ना है तो तुमको साइड बाय साइड जो भी तुम्हारी बर्थडे पार्टीज हैं या जहाँ भी जाना है वो सैक्रिफाइस करना ही Exactly. पड़ेगा। कम टाइम दो या ज्यादा टाइम दो, और अगर आपको दोनों मैनेज कर सकते हो तो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल टाइम शेड्यूल। अगर आपने अपना पूरा कर लिया कि आपको आज इतना पढ़ना है, अब आपका मन नहीं है, मर्जी जहाँ जाओ। मैं पेपर से 4 दिन पहले भी गया था, बट क्योंकि प्रैक्टिस हो रखी थी इसलिए गया था। नहीं जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो वन केयर्स। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 10 दिन नहीं गए, आप 11वें दिन चले जाओगे तो शायद चीजें थोड़ी सी आपको लगेगा कि आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, बट अगर आप कुछ हो जाओगे, बन जाओगे, एवरीवन विल एक्नॉलेज दैट। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक 2 दिन बाद फिर वो वापस सबको समझ में आने लग जाता है। जिन्हें समझना है वो समझ जाएंगे। आई थिंक वो फोमो जो होता है ना सबके, इफ आई से इन योर टर्म्स दैट फोमो, तो वो आई थिंक कई बार ना लोगों को लगता है कि हम ये भी लूज करेंगे, ये भी लूज करेंगे, बट यू हैव टू हैव दैट सैनिटी कि नहीं, अभी हमें पढ़ाई पे ही फोकस करना है। वही मैम, जिसे समझना है ना वो समझ जाएगा कि ये क्यों नहीं आ रहा है, बट जिन्हें नहीं समझना तुम जाके भी नहीं समझा पाओगे। Right. Absolutely. Wow, it's an amazing podcast. Thank you, Tushar, for such amazing podcast and giving us the insights of how you started and everything. Thank you once again for taking your time, and we wish you all the best for your journey. Thank you, ma'am. It's my pleasure. Well. Thank you. Thank you.